Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video we are going to begin a beautiful journey for class 11th, for class 11 students. Up till 2 years, I had just been putting out videos for ISC class 12, but now from this year onwards, we are going to start the journey of class 11, जिसमें मैं आपके subjects like economics, परहैप्स इफ आई डू गेट टाइम बीएसटी एज वेल, तो बीएसटी भी कराने का कोशिश किया जाएगा ऑन माय एंड, एंड इंग्लिश। ठीक है, माय फोर्टे इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स का आपका बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा जाएगा। So if you are watching the video for the first time, let me introduce myself that I am Aryan Thakkar and I am the coach and mentor of all the ICSE and ISC students out there, where you will get to see quality and lucid, very clear and crisp explanation of the subject economics, English, and perhaps BST, which is yet to be taken. I'm still on the decision making point. ठीक है, so आज का फर्स्ट वीडियो होने वाला है आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो regarding the first chapter of your class 11. One shot में ही आपको मिलेगा. The chapter's name is definition of economics. So what are we going to do is we are going to dive deep into the world of economics, what economics is all about, and the first chapter which is definition of economics, जहाँ पे वो कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया है into the subject matter. ठीक है, सो चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर के साथ, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और एज यू कैन सी इट्स रिटन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। नाउ जब भी आप कोई सब्जेक्ट को शुरू करने वाले होते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए. There should be one question that should come into your mind, that why are we studying this subject? Question number one, कि हम लोग आखिरकार क्यों पढ़ रहे हैं इसको, and then question number two, what are we gonna learn from this subject, और what should we expect from this subject, हमें क्या expect करना चाहिए. ठीक है, now since you are into the world of economics, let me tell you that we are going to deal with the economic problem of an economy. Economic problem of an economy. So economics as a subject का मुद्दा या matter is to dig out or find out the economic questions or the economic problem. ठीक है, the economic questions, या आप बोल सकते हो economic problems को dig out करना इस subject का काम है, which has a lot of impact onto our economic working of the country. Now, when I'm using this repeated word called economic, what do I mean by economic? Economic का मतलब होता है all those activities which are money centric. ठीक है, money centric activities. Money centric का मतलब हुआ those activities which are to be performed with the intention of acquiring wealth and generating money. पैसा कैसे कमाया जाता है एंड उस पैसा का क्या किया जाता है, दैट इज व्हाट आवर मुद्दा इज, आवर मैटर इज पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो बेसिक आपको समझ आया कि हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ेंगे, सो दैट वी कैन डिग आउट व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी इज बेसिकली एन economy is basically a framework मतलब it's a system of different individuals, institution, and all those entity who interact with one another. Basically economy में मैं हूं, मेरे साथ आर्यन ट्यूटोरियल है, इसके अलावा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, कंपनीज होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, गवर्नमेंट होंगे, ये सब एक चेन में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक मोटिव के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यानी मनी मोटिव के साथ इंटरैक्ट करते हैं. तो इसी चेन को, इसी सिस्टम को, इसी नेटवर्क को या इसी फ्रेमवर्क को इकोनॉमी बोला जाता है. ठीक है, सो कोई अगर आपसे इकोनॉमी का मतलब पूछे कि आखिरकार इकोनॉमी क्या होता है, सो इकोनॉमी इज बेसिकली इंस्टीट्यूशनल, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो. ठीक है, इकोनॉमी इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क का मतलब हो गया सेटअप. ठीक है, इकोनॉमी इज एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब हो गया सेटअप, विच प्रोवाइड्स, जो कि देता है
मीन्स, मीन्स मतलब हो गया आपका जरिया, मीन्स इज योर सोर्स which provides means of, one second, means of living, यानी हमारा जिंदगी जीने के लिए, हमारा लाइवलीहुड जीने के लिए जो भी पूरा एक इंटरैक्शन का जरूरत है, एक नेटवर्क का जरूरत है, एक सिस्टम का जरूरत है, वो हमें इकोनॉमी प्रोवाइड करता है। एंड उसी इकोनॉमी में इंटरैक्ट करते हुए हम लोग अपना जिंदगी या रोजगार जीते हैं, दैट इज इकोनॉमी। ठीक है, एंड उन्हीं रोजगार को जीते वक्त जितने भी प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं इनटू द सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स। एंड दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस। नाउ सोशल साइंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि साइंस का मतलब क्या है। अगर मैं अधिकतर बच्चों से पूछूं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपके हिसाब से साइंस का मतलब क्या है। ठीक है, और मुझे ये भी बताइएगा जो मैं अभी बताने वाला हूं कि अधिकतर 90% पीपल परसीव साइंस एज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बट दैट इज नॉट व्हाट साइंस इज। साइंस का मतलब होता है अगर आप कोई भी चीज को उठा के उसका सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक स्टडी अगर करते हो या एनालिसिस करते हो, इन अदर वर्ड्स कोई भी सब्जेक्ट को उठा के अगर आप उसका पूरा पोस्टमार्टम कर डालते हो कि क्या है उसके अंदर में, यू कम टू नो अबाउट एवरीथिंग पर्टेनिंग टू दैट सब्जेक्ट और रिलेटिंग टू दैट सब्जेक्ट, उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। एंड सोशल साइंस एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग बिहेवियर, जिसमें हम लोग बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, कि एक सोसाइटी कैसे बिहेव करेगा या कैसे एक्ट करेगा अगर कोई भी चेंजेस आया, हमारे इकोनॉमी में कोई भी पॉलिसी आया या चेंजेस आया, उसको इंटरप्रेट करने का कोशिश किया जाता है। इसीलिए आप देखिए ना किस तरीके का पिक्चर लगा हुआ है। मैंने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो कैसे कोई भी एक एरिया में चेंजेस आने से वो ऑटोमेटिकली दूसरे एरियाज को गवर्न करेगा, अफेक्ट करेगा, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ते हैं। आई होप इतना मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। सो आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ शुरू किया जाए कि क्या है इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। सबसे पहले एज आई सेड, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक क्वेश्चन। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है इकोनॉमिक क्वेश्चन का, कंज्यूमर्स सोचते हैं हाउ टू स्पेंड देयर इनकम, प्रोड्यूसर्स सोचते हैं क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, प्रॉफिट कितना आएगा, कितना क्वांटिटी बनाना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। वेजेस, वेजेस डिटरमाइन करते हैं, व्हाट डिटरमाइंस वेजेस, यानी कैसे डिसाइड किया जाए कि किसी लेबर को, स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो या सेमी स्किल्ड लेबर हो, उनको उनका कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए या कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा देश के अंदर में इनकम कैसे जनरेट होता है, नेशनल इनकम कैसे आता है, बेरोजगारी या गरीबी क्यों है, व्हाई डज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाई डू अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एग्जिस्ट इन आवर इकोनॉमी। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हमें किन चीजों में मदद करेगा, इंपॉर्टेंस क्या है सब्जेक्ट का, हेल्प्स अस टू कीवर्ड अंडरस्टैंड डेली इकोनॉमिक प्रॉब्लम, के रोजमर्रा की प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली इसके अलावा एनालाइज करने में हेल्प करता है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी बनाया तो वो क्यों बनाया एंड उसका इंपैक्ट हमारे देश में क्या पड़ेगा। ठीक है, उसका इंपैक्ट हमारे देश में क्या पड़ेगा। एंड हेल्प्स टू फ्रेम, फ्रेम का मतलब हो गया मेक, मेक या फिर ड्रॉ, हेल्प्स टू ड्रॉ सॉल्यूशन फॉर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पुअर विकास या अंडर डेवलपमेंट, हमारा विकास अगर स्लो है तो क्यों है, व्हाट आर द की रीजंस फॉर दैट एंड हाउ दे कैन बी टैकल्ड, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज गोना बी ऑल अबाउट। ठीक है, मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहता हूं दैट इकोनॉमिक्स सेंचुरीज अगो नेवर वाज अ सेपरेट डिसिप्लिन, मतलब इकोनॉमिक्स वाज नॉट अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी और इट वाज नॉट इन द एग्जिस्टेंस एज अ सब्जेक्ट, rather it is believed कि economics has undergone a lot of evolution, a lot of changes, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुआ वो एरिस्टोटल के साथ शुरुआत हुआ, he was the first one to understand that जब when it comes to wealth affair, पैसा का लेन देन को लेके बात आता है तो उसका एक सेपरेट पढ़ाई होना चाहिए। एंड उसके बाद इकोनॉमिक्स धीरे धीरे करके एग्जिस्टेंस में आना शुरू हुआ।
ठीक है. So some people believe that Aristotle was the first economist to understand that when it comes to money or when it comes to wealth affair, people have a very different way of behaving altogether, and that is when the subject got separated from psychology. Earlier economics was just a part of psychology. साइकोलॉजी समझते हो ना, मेंटल फ्रेमवर्क, उससे अलग कर दिया गया उसको. एंड देन बहुत सारे मर्केंटाइलिस्ट यानी बिजनेसमैन आए जिन्होंने सोचा कि वेल्थ का मतलब होता है पावर. ठीक है, मर्चेंट्स वगैरह को हम लोग मर्केंटाइलिस्ट बोलते हैं. उन्होंने ऐसा प्रमाण दिया कि एक इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका संपत्ति, उसका वेल्थ. The more wealth a country has, the better off are its citizens. जितना पैसा होगा उतना अच्छा होगा लोगों के लिए. तो उन्होंने धीरे धीरे करके पूरा इकोनॉमिक्स को नेविगेट करना शुरू किया. आप शिप देख सकते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट को नेविगेशन मिला. एंड देन उसके बाद जितने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए, पुराने इकोनॉमिस्ट आए, इन्होंने इकोनॉमिक्स को अपना एक अलग से दर्जा दिया, एक सेपरेट डिसिप्लिन बनाया, एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाया, एंड जिसको आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट. नाउ टू टेल यू why exactly are we studying this subject, अगर मेरे को बताना हो कि हम लोग क्यों ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो इसका कारण है, इसका मोटा मोटा रीजन अगर मैं आपको बताऊं, then that is scarcity. कोई भी अगर आपसे पूछता है why do we study this subject economics, the reason is scarcity. and scarcity का मतलब क्या होता है? What is the meaning of scarcity? It means limited availability. ठीक है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी. अब हम लोग अगर इकोनॉमी में रह रहे हैं, इकोनॉमी बाय द वे, इकोनॉमिक्स कहां से उठ के आया है? इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. ठीक है, दिस वर्ड इकोनॉमिक्स, इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस, जो कि था इकोनोमस. ठीक है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉल्ड इकोनोमस. नाउ इको का मतलब होता है हाउस होल्ड, गृहस्थी, एंड नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट. सो इकोनॉमिक्स बेसिकली आप अपने घर में ही देखते होंगे, आपकी मम्मी प्रैक्टिस करती है अननोइंगली, आपके पिताजी प्रैक्टिस करते हैं अननोइंगली. क्यों? क्योंकि पिताजी सुबह उठते हैं, दुकान खोलते हैं या जॉब पे जाते हैं, अपना 8 घंटा 10 घंटा अपने वर्क को देते हैं, पैसा कमा के लाते हैं ताकि आपकी परिवार की जरूरतों को पूरा किया जा सके, जरूरतों को पूरा किया जा सके. सो इकोनॉमिक्स इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. आप बोल सकते हो कि घर चलाना, गृहस्थी चलाना जैसे एक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बहुत छोटे स्तर पे, इंडिविजुअल लेवल पे पार्ट है. इन द सेम मैनर जब सारे घर का सब लोग अपना गृहस्थी कैसे चलाते हैं उसको जब एग्रीगेट के टर्म्स में पढ़ाई करते हैं, तब वो देश चलाने के बराबर हो जाता है. सो घर और देश को कैसे चलाया जाता है, हाउ अ कंट्री एंड अ हाउस होल्ड इज run in the economy, how they are run in the economy, that is what we get to study about in this subject economics. And main मुद्दा जो है कि जब घर चला रहे होते हैं आपके पिताजी जो है अंबानी अडानी नहीं होंगे, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम कमा के नहीं लाते होंगे. बोल कि आपकी सारी जरूरतें एक बार में पूरी नहीं हो सकती है, सारी इच्छाएं एक बार में पूरी नहीं हो सकती है. बोल के आपको डिसीजन लेना पड़ता है. As economists, as someone who's studying finance and economics, they are expected to take decision at each and every stage and phase of their journey or of their life. So economics हमें हमारा एनालिटिकल ब्रेन को एक्टिव करता है एंड हमें प्रोपेल करता है या कंपेल करता है कि हम लोग हर पाथ पे डिसीजन ले सके चीजों को लेके. एंड हमें क्यों डिसीजन लेना पड़ता है, इसका रूट कॉज इज स्कैर्सिटी. अगर सब कुछ प्लेंटी में होता है, if everything had been available in abundance, we wouldn't be studying this subject at all. It is because that everything is not in abundance, that is why we are studying the subject. I hope I am clear. इतना आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. So जब भी हम लोग कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो हम लोग उस सब्जेक्ट को उन लोगों को याद करते हुए शुरू करते हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है. We pay tribute to those people who have contributed into the development of this separate discipline altogether.
और द सब्जेक्ट मैटर ऑल टुगेदर। सो वही उठाते हुए जो फर्स्ट चैप्टर आपका बनाया गया है, इट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट, डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट डिफरेंट फेमस इकोनॉमिस्ट, उनको ट्रिब्यूट पे करते हुए, उनको याद करते हुए, उनका कंट्रीब्यूशन को जानते हुए इस सब्जेक्ट मैटर में, बिकॉज दे वर द फर्स्ट वन टू कंट्रीब्यूट इन द सब्जेक्ट मैटर, करते हुए फिर हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। ठीक है, सो इन टोटल इन दिस chapter we have to cover up 4 definitions given by 4 economists: Adam Smith, Alfred Marshall, Lionel Robin and Paul Samuelson। चारों का अपना अपना परसेप्शन था, पर्सपेक्टिव था इकोनॉमिक्स को लेके, उसको जानेंगे। एंड accompanied by lastly concludingly we'll be studying about the branches of economics, जो कि है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो क्या होता है उसके बारे में जानते हुए ये चैप्टर को हम लोग करेंगे रैप अप। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ रिगार्डेड एज द वेल्थ डेफिनेशन। नाउ बाकी लोग आपको कैसे पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरा इंटरप्रिटेशन, सिंस आई एम एन इंग्लिश टीचर, मुझे चीजों के डीप में जाने की बहुत ज्यादा आदत होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बहुत ही लेयर्ड वे में बताऊंगा, एक एक चीज को पील करके बताऊंगा कि एक्चुअली उसका मीनिंग होता क्या है। Now, Adam Smith के definition का नाम रखा गया है as wealth definition. So, Adam Smith was that kind of a person who thought or considered that a human life encircles around, या human life revolves around wealth earning and wealth spending activity. मतलब अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपका प्राइमरी मोटिव होना चाहिए पैसा 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 पैसा। जैसे मारवाड़ी और गुजराती लोग बोलते हैं ना हम लोग की बात पिस्सों की को नहीं, बात पिस्सों की है। मतलब कि अगर आप Marwadis and Gujjus, if they are not talking about money, that means they are not going to engage themselves in a conversation over there. So Adam Smith का सेम लॉजिक उठाते हुए वेल्थ डेफिनेशन बनाया गया है, जिसमें आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि वेल्थ कमाते कैसे हैं, हाउ इज वेल्थ जेनरेटेड इन द इकोनॉमी, वो उसका प्राइमरी फोकस था। नाउ एडम स्मिथ, जान लीजिए, ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपको अपने आंसर में मेंशन करना होता है, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, ही इज द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया और ये है उनका डेफिनेशन। अगर आप ध्यान से देखें, लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which inquires into the nature and causes of wealth of nation। अगर आप इसको एक बार में पढ़ेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फर्स्ट रीड में क्या बोलना चाह रहे हैं, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, क्या बोलना चाह रहा है, कुछ कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है ठीक से। आर्यन सर थोड़ा सा क्लियर करके बताइए हम लोगों को क्या है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको 3 पार्ट में तोड़ दीजिए। सबसे पहला पार्ट है साइंस, इंक्वायर्स इनटू नेचर हो गया पार्ट 2, एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन हो गया पार्ट 3। ठीक है, इस वे में मैंने डिवाइड कर दिया सब्जेक्ट मैटर को। नाउ सबसे पहले शुरू करते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। एंड क्योंकि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है तो यहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिकली स्टडी कर रहे हैं लोगों का वेल्थ एसोसिएटेड बिहेवियर। ठीक है, एडम स्मिथ का बात हो रहा है, वेल्थ डेफिनेशन का बात हो रहा है, तो उसका वेल्थ एसोसिएटेड बिहेवियर को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप इससे पहले सेकंड पार्ट को समझे, इंक्वायर्स इनटू नेचर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले थर्ड पार्ट को समझो, क्या लिखा है, कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसको थोड़ा सा पलटो और समझो, क्वेश्चन फ्रेम करो, व्हाट कॉजेज वेल्थ नेशन। कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन हो गया व्हाट कॉजेज नेशंस वेल्थ, यानी एक देश वेल्दी कैसे बनता है। What are the factors that leads to generation of wealth in the economy? So what causes nation wealth, causes of wealth of nation, इसका आंसर क्या है। अब आपके मन में क्वेश्चन तो आ गया कि एक नेशन में वेल्थ कैसे आता है। उसका जवाब है, उसका आंसर है इंक्वायरी इनटू नेचर। है इंक्वायरी इनटू नेचर। इंक्वायरी इनटू नेचर का मतलब क्या हुआ, देखिए नेचर में, कुदरत में, नेचर यहां कुदरत हो गया, ठीक है, नेचर में आपको सब कुछ पहले से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है नेचर में सब कुछ पहले से, रिसोर्सेस दिया हुआ है। नेचर इज अबाउंड इन रिसोर्सेस। अबाउंड का मतलब क्या होता है कि नेचर के पास बहुत अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कैटेगरी के रिसोर्सेस अवेलेबल है। आपको करना क्या है, आपको नेचर के पास जाना है। नेचर, नॉक नॉक, बोलिए क्या चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिए। इन अदर वर्ड्स आपको सबसे पहले खुद
नेचर में से रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिसोर्स यूजफुल है एंड कौन सा रिसोर्स यूजफुल नहीं है. सो फर्स्ट स्टेप विल बी व्हाइल यू आर इंक्वायरिंग यानी इंक्वायरी इज लाइक नॉक नॉक अवेलेबल है क्या, दैट इज इंक्वायरी. सो इंक्वायरी करते हुए नेचर में सबसे पहला काम जो आएगा वो आएगा आइडेंटिफिकेशन का. आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस कि नेचर के पास कौन कौन से रिसोर्सेस है. ठीक है, उसके बाद उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन. यानी आपको उस रिसोर्स को निकालना है बाहर. एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेस, आप उसको बाहर निकालोगे. देन उसको बाहर निकालने के बाद तीसरा होगा ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो रिसोर्सेस रॉ फॉर्म में यूजफुल नहीं होगा, आपको उसको यूजफुल बनाना पड़ेगा. सो बोल के आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन करोगे या मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जो हमारे देश के जीडीपी के साथ एसोसिएट हो जाता है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है इकोनॉमी के अंदर में. जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म करोगे एंड लास्ट स्टेप में जब आप उसको बेच दोगे, यूजफुल बना के सेल कर दोगे, तड़ा, वेल्थ आ गया. बिकॉज द मोमेंट यू सेल दैट प्रोडक्ट इट विल गिव यू व्हाट, इनकम, पैसा आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा दादा. सेल से रेवेन्यू आएगा और वो रेवेन्यू इंक्रीज होते 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 अलग अलग सोर्सेस से इनकम कमाते हुए, पैसा कमाते हुए, 1 सेकेंड, पैसा कमाते हुए आप वेल्दी बन जाओगे. हो गया. सो व्हाट कॉजेज नेशंस वेल्थ? आंसर इज इंक्वायरी इनटू नेचर. That nature has all kind of resources, they are just needed to be identified, extracted, transformed and sold. That is the meaning of the definition. जब आप definition लिखोगे एडम स्मिथ का, आप as it is उसका जो word है उसको exact way में लिख के आओगे, उसको कुछ भी alter नहीं करोगे या कुछ भी change करने का कोशिश नहीं करोगे. So एडम स्मिथ का main मुद्दा is that how the citizens of the economy or a nation, how they earn wealth and how they spend it. That is what his focus area of study was. ठीक है, हाउ पीपल अर्न वेल्थ एंड हाउ दे स्पेंड इट. सो अगर फीचर्स का बात करें इस डेफिनेशन का, सबसे पहला हिज डेफिनेशन इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ वेल्थ. स्टडी ऑफ वेल्थ का मतलब हो गया कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं और पैसा को कैसे स्पेंड करते हैं. सो बहुत ही वेल्थ सेंट्रिक अप्रोच है उनके डेफिनेशन का. सेकेंड है कॉजेज ऑफ वेल्थ. कॉजेज ऑफ वेल्थ का मतलब हो गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गिव्स राइज टू वेल्थ. मैंने आपको क्या बोला? आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड सेलिंग. इन अदर वर्ड्स, आपको प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अक्यूमुलेशन, जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करोगे, उसको बांटोगे, उससे पैसा मिलेगा, उस पैसा को अक्यूमुलेट करोगे, एड ऑन करते जाओगे, आपका संपत्ति अपने आप बढ़ते जाएगा, वेल्थ अपने आप इंक्रीज होते जाएगा. इसीलिए एक इकोनॉमी बहुत ज्यादा एसेट्स के ऊपर फोकस करता है कि अपने एसेट्स को कैसे इंक्रीज किया जाए, इन अदर वर्ड्स अपना संपत्ति को कैसे बड़ा किया जाए. ठीक है. एंड तीसरा इकोनॉमिक मैन. नाउ इकोनॉमिक मैन, एडम स्मिथ बोलते हैं दैट एवरी ह्यूमन शुड बी एन इकोनॉमिक मैन. इकोनॉमिक मैन वो होता है जो कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म तब करेगा जब उसमें मॉनेटरी बेनिफिट हो. अगर एक्टिविटी में मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है तो उस एक्टिविटी को रूल आउट कर दिया जाएगा, उसको परफॉर्म ही नहीं किया जाएगा. That person is an economic man. I hope I'm clear. Economic man is someone who is aware of his or her self interest. Self interest का मतलब हो गया economic interest या monetary interest आप बोल सकते हो. ठीक है. सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स मॉनेटरी इंटरेस्ट, जिसको पैसा के लेन देन में रुचि हो, इंटरेस्ट हो, उसको हम लोग इकोनॉमिक मैन बोलते हैं. हाउएवर इनके डेफिनेशन को बहुत सारे ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज भी किया गया है. जैसे कि पहला ग्राउंड बोला गया है टू मच एम्फेसिस ऑन मटीरियलिज्म. यानी इनका डेफिनेशन इज टू मच सराउंडेड बाय मटीरियलिस्टिक थिंग्स. ठीक है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स या गुड्स एंड सर्विसेज जिंदगी जीने के लिए तो जरूरी है, इट इज अ सोर्स ऑफ लिविंग और इट इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, बट इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ. द एंटायर ह्यूमन लाइफ कैन नॉट रिवॉल्व अराउंड मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस या मटीरियलिस्टिक अक्यूमुलेशन. चीजों को सिर्फ अक्यूमुलेट करके इंसान का जीवन संपन्न नहीं हो जाता है, उसमें बहुत कुछ भी है जो आता है, जैसे हैप्पीनेस वगैरह है. आपका यू नो योर इमोशंस, योर सेंटिमेंट, दे आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम योर इकोनॉमिक interaction with the people or the citizens of the country. That has been completely ignored. इसीलिए criticize किया गया है
सेकंड, नैरो व्यू ऑफ वेल्थ बताया है उन्होंने। इंक्वायरी इनटू नेचर का मतलब हो गया नेचर में जो भी रिसोर्सेज होगा वो टैंजिबल फॉर्म में होगा। चलो अग्रीड कि टैंजिबल रिसोर्सेज प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं, बट मान लीजिए आप इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे सर्विसेज भी तो है जो कि वेल्थ जनरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको आप कैसे रूल आउट कर दिए? हाउ कैन यू एक्सक्लूड सर्विसेज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर विच आर द इक्वल कंट्रीब्यूटर्स एंड पिलर्स ऑफ वेल्थ इन द इकोनॉमी? क्योंकि एजुकेशन नहीं होगा तो आगे जाके शायद आप रेडी नहीं होंगे कोई काम करने के लिए ना, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे वेल्थ जनरेशन एक्टिविटी में। सो उन्होंने उस चीज को एक्सक्लूड कर दिया, बोल के क्रिटिसाइज हो गए। सेकेंडरी प्लेस टू मैन, what is important is mankind, what is important is human being and not just wealth। ठीक है, पैसा जरूरी है लेकिन इंसान से ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, वेल्थ के नॉट बी मोर इंपॉर्टेंट दैन ह्यूमन, ह्यूमन हैज टू बी मोर इंपॉर्टेंट दैन वेल्थ, बोल के इनको क्रिटिसाइज कर दिया गया है कि आपने वेल्थ को अनड्यू इंपॉर्टेंस दे दिया अपने डेफिनेशन में। एंड इन्होंने एक सबसे बड़ा यूनिवर्सल प्रॉब्लम जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी। नो मैटर हाउ हार्ड एन इकोनॉमी ट्राइज, वो कभी भी अबंडेंटली रिच नहीं हो सकता है। अबंडेंटली रिच यानी उसके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं आ सकता है। सो आप वेल्थ भी एक लेवल तक ही अटेन कर सकते हो, बियॉन्ड विच हो सकता है शायद आपका रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएगा एंड आप और वेल्थ जनरेशन ना कर पाओ। सो उन चीजों को उन्होंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर, विच इज योर वेलफेयर डेफिनेशन बाय अल्फ्रेड मार्शल। चलिए, एडम स्मिथ को तो क्रिटिसाइज कर दिया गया है, उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन आया वो था वेलफेयर डेफिनेशन का, क्योंकि एडम स्मिथ को बोला गया कि आपने सेकेंडरी प्लेस टू मैन दे दिया। इन अदर वर्ड्स आपने मैनकाइंड को, ह्यूमन बीइंग को सेकेंडरी प्लेस देके वेल्थ को प्राइमरी दिया है, विच इज इनकरेक्ट। What is important is human being first and their happiness and then comes your wealth. Wealth is just your means. Wealth खाली एक जरिया होना चाहिए जिंदगी जीने का। वेल्थ खुद में एक एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इसको मद्देनजर रखते हुए देन केम अप योर वेलफेयर डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, जहां वेलफेयर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर? वेलफेयर मींस वेल बीइंग, वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, एंड वेल बीइंग को आप हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, हैप्पीनेस, या फ्रेजल वर्ब में हम लोग बोलते हैं बेटर ऑफ। बेटर ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार यूज भी किया होगा इसको, ए लिसन कैन यू गिव मी अनदर चांस, तो आप बोलते हो नो आई एम बेटर ऑफ विदाउट यू। बेटर ऑफ मींस आई एम मोर हैप्पी विदाउट यू, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अच्छा चल रहा है। सो वेलफेयर इज एसोसिएटेड विद अ सेंस ऑफ बेटर ऑफ, और अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, और अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। ये था अल्फ्रेड मार्शल का लॉजिक कि उनके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेल बीइंग होना, हैप्पीनेस होना, रादर देन वेल्थ होना। बट ये भी थोड़े से सटके हुए थे, इन्होंने भी वेल बीइंग जो है उसको एसोसिएट कर दिया मटीरियलिस्टिक रिक्विजिट के साथ। अगर आप डेफिनेशन में देखो तो आपको ये दो वर्ड दिखाई देगा, मटीरियलिस्टिक रिक्विजिट। नाउ मटीरियल का मतलब हो गया टैंजिबल आइटम, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट, वो खुशी जो हमें चीजों को खरीदने से मिलती है। एंड requisites का मतलब हो गया requirement, so that happiness which we derive from attaining or acquiring materialistic things। so उन्होंने भी तो घुमा फिरा के बात तो वेल्थ के ऊपर ही ला दिया, बस सीधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा भाषा में लाया है। उनके डेफिनेशन को अगर डिकोड करें तो इन्होंने क्या कहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इन्होंने प्राइमरी प्लेस दिया है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस दिया है ह्यूमन बीइंग को, that economics is a study of mankind in the ordinary business of life। ordinary business of life का मतलब हो गया in day to day life। ठीक है, इन डे टू डे लाइफ। अब डे टू डे लाइफ में एक इंसान बहुत सारे एंगल से या पर्सपेक्टिव से इंटरैक्शन करता है लोगों के साथ। देयर इज अ सोशल इंटरैक्शन, यानी आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के इंटरैक्ट करते हो। देयर इज पॉलिटिकल इंटरैक्शन, देयर इज रिलीजियस इंटरैक्शन, देयर इज इमोशनल इंटरैक्शन, देयर इज पेट्रियोटिक इंटरैक्शन, देयर इज इकोनॉमिक इंटरैक्शन एज वेल। ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ हो गया, इसमें हम लोग सारे काइंड ऑफ इंटरैक्शन के साथ डील नहीं कर रहे, वी आर ओनली डीलिंग विद द इकोनॉमिक इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब हो गया इकोनॉमिक इंटरैक्शन, कि हम लोग कैसे ह्यूमन बीइंग्स के साथ इकोनॉमिकली इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी मनी ओरिएंटेड इंटरैक्शन हो रहा है। सो इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ वेयर इट, ये इट का मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक्स, यानी ये सब्जेक्ट जो है,
सो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स का मतलब हो गया एनालाइजेस, ठीक है, इट एनालाइजेस और इट मेक्स एन एनालिसिस ऑफ दैट पार्ट, वो हिस्सा किसका, इंडिविजुअल बिहेवियर का, एंड सोशल एक्शन, एक्शन मतलब हो गया बिहेवियर, कि एक इंडिविजुअल और एक सोसाइटी एज अ होल कैसे बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशन में. So economics is a study of mankind in the ordinary business of life, where economics examines that part of individual and social behavior which is most closely connected with, का मतलब हो गया which is linked with, or which is associated with, or which is related with. So which is most closely connected with the attainment का मतलब हो गया acquiring, कि आपको acquire भी करना है, and use मतलब हो गया इस्तेमाल भी करना है. So which is associated, linked with acquiring and usage of materialistic requisites. Now materialistic requisites हो गया मतलब economics as a subject is associated with happiness, and that happiness which comes from acquisition, acquiring and usage of materialistic things, goods वगैरह का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. So materialistic things which are the requisites यानी which are the requirement of well-being or which comprises well-being, यानी वो खुशी, हमारा खुशी का वो हिस्सा जो बनता है चीजों को अक्वायर करने से. दैट इज व्हाट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज अबाउट एज पर अल्फ्रेड मार्शल. सो एक साइड में, ऑन वन साइड इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, एक तरफ इंपॉर्टेंट साइड हो गया आपका स्टडी ऑफ वेल्थ, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट साइड हो गया स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो ये थोड़ा सा महान बनने का कोशिश किया एडम स्मिथ से, जहां पे बोलते हैं कि वेल्थ शुड बी सेकेंडरी एंड मैनकाइंड शुड बी प्राइमरी, बट मैनकाइंड का जो हैप्पीनेस है वो आना चाहिए वेल्थ के थ्रू. सो बात उन्होंने भी घुमा फिरा के वही किया है जो एडम स्मिथ ने किया है, ठीक है. इनके फीचर्स का अगर बात करें, सबसे पहला स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्शल वेलफेयर इज समथिंग विच इज पैरामाउंट, विच इज सुप्रीम, विच इज सुपीरियर, यानी हैप्पीनेस कम्स प्राइमरी एंड देन वेल्थ बिकम्स सेकेंडरी. इसीलिए आप देखिए यहां लिखा है वेलफेयर इज सेंट्रल, एंड वेल्थ जो कि सिर्फ एक जरिया है, सिर्फ एक सोर्स है हैप्पीनेस का. Wealth can only be a means to welfare, can only be a source to happiness. Wealth itself cannot be happiness. ये इनका डेफिनेशन का फीचर निकलता है. सेकंड है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब इनका भी जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के रिवॉल्व अराउंड करता है, यानी इकोनॉमिक इंटरैक्शन के साथ डील करता है, वेल्थ अर्निंग एक्टिविटीज के साथ डील करता है, फोकसेस ऑन इनकम अर्निंग एंड स्पेंडिंग एक्टिविटी. तीसरा, इन्होंने वेलफेयर का तो बात किया है, बट वो वेलफेयर मटीरियलिस्टिक वेलफेयर है, यानी वो खुशी जो हमें पैसा खर्चा करने से मिलता है, ठीक है. सो हिज डेफिनेशन इज कंसर्न्ड विद मटीरियलिस्टिक गुड्स ओनली व्हिच कैन प्रोवाइड हैप्पीनेस टू अ ह्यूमन बीइंग. requisites of well-being का मतलब हो गया that before we satisfy all other kinds of need, our social need, our emotional need, our religious need, our sentimental need, सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक नीड आता है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान. दे आर द प्री रेक्विजिट यानी दे आर द प्री रिक्वायरमेंट. बिफोर हैंड हम लोग कुछ और ले, हमें सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान का जरूरत है. दैट इज वाई requisites ऑफ वेलबींग लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. एंड इनके डेफिनेशन में वंस अगेन इन्होंने मटीरियलिस्टिक रेक्विजिट बोल दिया, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सेंटिमेंटल, ये सारे चीज का कोई दर्जा ही नहीं है. यहां सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात होगा, वेल्थ अर्निंग एक्टिविटीज के बारे में बात होगा. ओनली एक्टिविटीज विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, दे आर टू बी टेकन इनटू द अकाउंट एज पर अल्फ्रेड मार्शल. इनको भी क्रिटिसाइज किया गया है भैया कुछ कुछ ग्राउंड पे. सबसे पहला क्रिटिसिज्म, इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस. आप इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों बोल रहे हो, आप क्यों इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोल रहे हो, यानी आप सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हो हु आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. व्हाट अबाउट दोस पीपल हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. जैसे कि एग्जांपल यहां दिया गया आइसोलेटेड इंडिविजुअल. आइसोलेटेड यानी जो कि सिक्लूजन में रहते हैं या एक्सक्लूजन में रहते हैं, जैसे हमारे प्रीस्ट हो गए या संत विधाता लोग हो गए. क्या वो लोग भोजन नहीं करते, वो लोग खाना नहीं खाते, क्या वो लोग कपड़ा नहीं पहनते, क्या उनके सर के ऊपर शेल्टर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है? जी होता है ना. So why are you saying that economics is a social science? Rather you should say that economics is a human science, क्योंकि human beings के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो. जब आप बोल रहे हो कि economics is a study of mankind, तो आप economics को social science का दर्जा कैसे दे सकते हो? How can you talk about those people who are a part of society and seclude those people who are not a part of society? इसीलिए उनको क्रिटिसाइज कर दिया गया. सेकेंड, डिविजन ऑफ एक्टिविटी.
ऑल्दो इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटी को सेपरेट करने का कोशिश किया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से, हाउएवर द सेपरेशन इज इन रियलिटी नॉट पॉसिबल। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं विथ एन इकोनॉमिक इंटेंशन बिहाइंड इट। अब मान लीजिए मैंने डोनेशन किया, अपना एक वीडियो बना के डाल दिया ताकि मैं लोगों का सहानुभूति ले सकूं कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, एंड उसके शेयरिंग से एंड व्यूज से एंड रील से मुझे लाइक आएगा। सो दैट इज लाइक अ मार्केटिंग पीआर दैट आई एम डूइंग। ऑल्दो मैंने दिखाने के लिए एक सोशल इंटरैक्शन किया है, मैंने सोशल वर्क किया है डोनेशन करके, बट मेरा इंटेंशन है लोगों से सहानुभूति लेना एंड अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को फुलफिल करना। सो आप किसी भी इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। इस टाइप का सेपरेशन अनरियलिस्टिक होता है एंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, अनरियलिस्टिक एंड ओवरलैपिंग, यानी एक दूसरे को इंटरफेयर कर सकता है। इसके अलावा मटीरियलिस्टिक है, आपने अपने डेफिनेशन में वेल बीइंग तो बोला है, बट वो वेल बीइंग मटीरियलिस्टिक बना दिया है। मटीरियलिस्टिक यानी वो हैप्पीनेस, वो खुशी जो हमें पैसा खर्चा करने से मिले। पैसा खर्चा करने से खुशी तो मिलता है, लेकिन अनंत खुशी पैसा खर्चा करने से नहीं मिल सकता है। एक्चुअल हैप्पीनेस कैन नॉट बी मॉनेटरी इन नेचर। Happiness is something which is subjective, it is composite, and it cannot be it cannot be labeled as only materialistic in nature. इस ग्राउंड पे भी उनको क्रिटिसाइज कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड स्कोप जैसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बट वो वेलबींग प्रमोट नहीं करता है। जैसे आप लिकर का बात करिए, लिकर वेल्थ ला के देता है, एक मेजर चंक ऑफ पैसा जो है इकोनॉमी का वो अल्कोहल के सेल से आता है, वो सिगरेट्स के सेल से आता है, टोबैको के सेल से आता है। इनको प्रमोट किया जाता है, इनका स्टडी किया जाता है इकोनॉमिक्स में। हाउएवर ये किसी भी वेलफेयर को प्रमोट नहीं करता है, किसी भी टाइप का वेलबींग को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। एंड इसके अलावा वीक कॉन्सेप्ट, एज आई सेड, वेलफेयर हैप्पीनेस इज समथिंग व्हिच इज सब्जेक्टिव। तो आप उसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते कि मटीरियलिस्टिक होना चाहिए या नॉन मटीरियलिस्टिक होना चाहिए। वेलफेयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी साइकोलॉजिकल, हैप्पीनेस इज समथिंग व्हिच इज साइकोलॉजिकल। किसी को कम में भी बहुत खुशी मिल जाएगा, किसी को बहुत में भी कुछ खुशी नहीं मिलेगा। सो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है या डिपेंड करता है किसको कितना खुशी मिलेगा या कितना वेलफेयर मिलेगा। ये हो गया मार्शल जी का डेफिनेशन। कमिंग टू द थर्ड डेफिनेशन विच इज स्कैरसिटी डेफिनेशन बाय लायनल रॉबिन। अब इन्होंने थोड़ा सा रियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करने का कोशिश किया है। एडम स्मिथ और मार्शल समवेयर और दी अदर दोनों ही वेल्थ सेंट्रिक थोड़े से हो गए, यानी मनी सेंट्रिक हो गए। तो बीच में लायनल रॉबिन प्लंजन करते हुए बोलता है कि भैया आप एक फंडामेंटल फैक्ट, एक यूनिवर्सल ट्रुथ भूल जा रहे हैं। No matter how hard an economy tries or a country tries, it can never become abundantly rich. Why? Because of a universal reality or a universal fact or a universal truth that resources unlimited amount में है ही नहीं। जो कुदरत ने रिसोर्सेज भी दिए हैं वो भी लिमिटेड दिए हैं। तो आप वेल्थ जो है वो भी एक लिमिट तक ही जनरेट कर सकते हो, हद से ज्यादा नहीं कर सकते हो। बोल के इनका डेफिनेशन थोड़ा सा रियलिस्टिक प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है, बट देन सिर्फ प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है, सोल्यूशन कुछ नहीं देता है। एंड उस ग्राउंड पे बेचारे ये भी क्रिटिसाइज हो जाएंगे, क्योंकि एज इकोनॉमिस्ट वी एक्सपेक्ट कि आप प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी दे। आप सिर्फ प्रॉब्लम दिखा के नहीं बोल सकते हो कि ये भैया ये प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, वो हमें भी पता है कि ये प्रॉब्लम है, बट उसका सोल्यूशन क्या है। बोल के चौथा डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग ग्रोथ ओरिएंटेड। पहले इसको डिकोड करते हैं। सो एज पर लायनियल रॉबिन, हिज नेम इज लायनियल रॉबिन, इन्होंने स्कैरसिटी डेफिनेशन दिया जो कि यूनिवर्सल फैक्ट या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ को हाईलाइट करते हुए बताता है दैट इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। नाउ द मोमेंट वी आर सेइंग दैट इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, तो हमने बोल दिया इकोनॉमिक्स सोशल साइंस से हटके ह्यूमन साइंस बन गया, ठीक है। जिस ग्राउंड पे मार्शल को क्रिटिसाइज किया गया, उसी क्रिटिसिज्म को हटाते हुए उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ही डिड नॉट से सोशल बिहेवियर। फिर सोशल बिहेवियर बोलते तो सोशल साइंस बन जाता है, देन वापस से उनका पढ़ाई होता, जो लोग पार्ट ऑफ सोसाइटी है उनको आप छोड़ देते, जो लोग पार्ट ऑफ सोसाइटी नहीं है। Therefore, he has been very mindful of using human behavior in his definition. So, economics studies human behavior as a relationship between unlimited ends. Ends मतलब हो गए want, ठीक है, अनलिमिटेड वांट, एंड स्केर्स मींस, मींस का मतलब हो गया रिसोर्सेस।
सो इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स का पढ़ाई है इन द लाइट ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप यानी एक बैलेंस कैसे एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। रिलेशनशिप मतलब हो गया यहाँ पे बैलेंस, कि लोगों की इच्छाएं तो अनंत होंगी लेकिन उस अनंत इच्छाओं को पूरा करने का कोई मार्ग या जरिया नहीं। सो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस कैसे लाया जाए, एंड दैट टू एक और प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए, दिस इज अ प्रॉब्लम कि रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब हो गया कि रिसोर्सेस के मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल यूजेस है, जिससे कि अराइज होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब कि आप मेरे सामने यहाँ पे बेंच रखा हुआ है तो मैं लकड़ी का एग्जांपल लेता हूँ, लकड़ी से आप बेंच बना लो, आप सोफा बना लो, आप अलमीरा बना लो, आप बुक शेल्फ बना लो, या फिर आप दरवाजा बना लो, आप इतना कुछ बना सकते हो। यानी उस लॉग ऑफ वुड का मल्टीपल यूजेस है। अब आप उसमें से उस एक लॉग ऑफ वुड में से 5 आइटम नहीं बना सकते हैं। अगर आप एक फर्नीचर टाइप डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को ये बनाना है तो बाकी सारे रह जाएंगे। सो एज एन इकोनॉमी और एज अ प्रोड्यूसर यू विल हैव टू मेक अ चॉइस कि मैं ये बनाऊं या मैं वो बनाऊं। अगर ये बनाऊंगा तो कुछ और नहीं बन पाएगा, कुछ और बनाऊंगा तो कोई और प्रोडक्ट रह जाएगा, मतलब कमी हमेशा कहीं ना कहीं रह जाएगा। सारी इच्छाएं या सारी वांट्स कभी भी पूरी नहीं हो पाएंगी एक साथ, एंड उसी के बीच में हमें बैलेंस खोजना है। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी अबाउट एज पर स्केर्सिटी डेफिनेशन और एज पर लायनल रॉबिन। फीचर्स का बात करें तो उनके डेफिनेशन के हिसाब से सारे यूनिवर्सल फीचर हाईलाइट होते हैं। जैसे सबसे पहला अनलिमिटेड वांट, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ह्यूमन बीइंग का वांट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ अनलिमिटेड इन नेचर ही होता है। पैदा होने से लेके मरने तक एक इंसान की इच्छाएं अनंत होती है। लास्ट में मरते मरते भी वो बोलता है भगवान प्लीज उठा ले, भगवान प्लीज उठा ले, मतलब वो लास्ट में भी कुछ मांग ही रहा है। द पर्सन इज वांटिंग समथिंग और दी एल्स। ठीक है, सो एज वन वांट इज सैटिस्फाइड अनदर वांट इमीडिएटली क्रॉप्स अप। आपकी एक इच्छा पूरी की जाएगी, आपका दूसरा वांट आ जाएगा, दो पूरी की जाएगी, आपका चार आ जाएगा, चार पूरा किया जाएगा, आठ आ जाएगा, एंड इट इज अ नेवर एंडिंग लूप। ठीक है, हाउएवर इन सारी इच्छाओं को पूरा करने का जो जरिया है, मीन्स है, रिसोर्सेज है, वो स्केर्स है। स्केर्स मतलब वो लिमिटेड है। So no matter how hard an economy tries, everything, every desire or every want of theirs cannot be fulfilled. सब कुछ पूरा नहीं हो सकता है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है डिसीजन मेकिंग का। एंड तीसरा कि रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस है, जिसकी वजह से आपको चूज करना पड़ेगा कि आप एक्स कमोडिटी बनाओगे या वाई बनाओगे। एक्स बनाओगे तो वाई नहीं बनेगा, वाई बनाओगे तो एक्स नहीं बनेगा, जिससे कि ये एसोसिएट हो जाता है विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से प्रॉब्लम आता है अबाउट एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब हो गया, एलोकेशन का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मैं रिसोर्सेज को किस सेक्टर को कितना रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करूं। आप हमारे पार्लियामेंट में भी देखेंगे इसी को लेके तो विवाद हो रहा होता है कि मॉनेटरी रिसोर्सेज जब बजट आता है तो किसी स्टेट को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, डेवलपमेंट के हिसाब से, गोल्स के हिसाब से। उसी में राज्यों के बीच में विवाद, झगड़ा, अनबन शुरू हो जाता है। वो राज्य आपका खुद का राज्य है बोल के आपने उसको ज्यादा पैसा दिया है, हमारा कोई और ऑपोजिशन पार्टी, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। सो इसी को लेके इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। इसके अलावा चॉइस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इट सिंस देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, देयरफॉर एट एवरी फेज यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आप ये करोगे या आप वो करोगे, एंड एवरी चॉइस कम्स विद अ रेपरकशन। हाउएवर चॉइस लेते वक्त एक गोल जो होता है वो प्राइमरी गोल होता है, दैट इज इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज। नाउ इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है पुटिंग द रिसोर्स टू द बेस्ट पॉसिबल यूज। मतलब जब आप रिसोर्स को एलोकेट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके दिमाग में एक गोल सेट होना चाहिए कि ये जिस भी सेक्टर में रिसोर्स जाए उसका बेस्ट इस्तेमाल होना चाहिए, वो इकोनोमाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस दिखाया गया है, एंड दैट टू पॉजिटिव साइंस। देखिए साइंस भी दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव। पॉजिटिव साइंस जो है ना वो थोड़ा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब कि वो बायस्ड नहीं है, मतलब वो प्रॉब्लम तो बता देता है। पॉजिटिव साइंस हमें बताता है कि चीजें क्या है, व्हाट इज, जो चीजें जैसी है वो उसी को दृश्य में दिखा देता है। तो जैसे वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस है जिससे कि चॉइस आ रहा है, ये तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो गया, ये तो स्टैटिक हो गया, ये तो न्यूट्रल हो गया कि कोई स्टैंड नहीं लिया। हमें भी पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट अनलिमिटेड है, बट आगे क्या, उसका क्या करना है।
उसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ है। सो उनका डेफिनेशन जो है पॉजिटिव साइंस है, जो कि पढ़ाई बताता है ऑफ व्हाट इज, क्या है। इन अदर वर्ड्स इनका डेफिनेशन बहुत स्टैटिक है, या इनका डेफिनेशन बहुत न्यूट्रल है। एंड एज इकोनॉमिस्ट हम लोग न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, वी हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड एज वेल, वी हैव टू टेक डिसीजन एज वेल। सो उसमें हमें एक क्लियर स्टैंड लेना पड़ता है, क्लियर साइड लेना पड़ता है कि क्या किया जाना चाहिए इसका, ठीक है। इनको भी क्रिटिसाइज किया गया है कुछ कुछ ग्राउंड पे। जैसे सबसे पहला, इग्नोर द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। नॉर्मेटिव मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया इनका डेफिनेशन न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव नहीं है। नॉर्मेटिव मतलब होता है जो बताता है व्हाट ऑट टू बी, ऑट का मतलब हो गया व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। क्या है सिर्फ ये बता देने से नहीं होता है, क्या होना चाहिए, चलो ये है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, दैट इज नॉर्मेटिव साइंस, जो कि इन्होंने इग्नोर कर दिया। एट द सेम टाइम इनका डेफिनेशन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। इन्होंने सिर्फ प्रेजेंट प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है कि आज प्रेजेंट में अनलिमिटेड वांट है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्केसिटी है रिसोर्सेज का, एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस है, उससे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है। ठीक है, आज रिसोर्सेज लिमिटेड है, कल फ्यूचर में रिसोर्सेज ग्रो भी कर सकता है, तो उसका क्या। एज इकोनॉमिस्ट हम लोग सिर्फ प्रेजेंट प्रॉब्लम का बात नहीं कर सकते, हमें फ्यूचर प्रॉब्लम का को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, उसके बारे में भी बात करना पड़ता है, जो कि इन्होंने इग्नोर कर दिया। ही इग्नोर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, उन्नति, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, ये सारे भी कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, मैटर है, जो कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई किया जाना चाहिए, बट इन्होंने अपने डेफिनेशन में उसको टच अपॉन नहीं किया। इसके अलावा इनका डेफिनेशन बहुत स्टैटिक है। इन्होंने मान लिया कि प्रेजेंट में रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम रिसोर्सेज का टेंडेंसी होगा ग्रो करने का, तब उसको कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसका पढ़ाई कहाँ है, इनके डेफिनेशन में नहीं है, बोल के वो क्रिटिसाइज हो गए। एंड इन्होंने एक बात को नजरअंदाज कर दिया कि कभी कभी हमारे देश में प्रॉब्लम लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से नहीं आता है, कभी कभी अबंडेंस की वजह से भी आ जाता है। जैसे इंडिया में भी ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s के टाइम पे, अगर आप सर्च करोगे तो, ठीक है। एंड वो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे खाना नहीं है, पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। COVID-19 could be an example of not depression, I would say, but recession. GDP was minus 13.1%. रिसेशन वो होता है जिसमें तीन पिलर्स जो इकोनॉमी के होते हैं वो पूरा हिल जाता है। इनकम, देयर इज अ subsequent reduction in the level of income. Second is employment, and third is GDP, that is growth. ये तीनों जब हिल जाते हैं पूरा इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था हिल जाता है। और ये तब होता है जब कभी कभी चीजें बहुत ज्यादा प्लेंटी में हो, क्योंकि प्लेंटी में होने की वजह से लोग मिसयूज करना शुरू कर देते हैं रिसोर्सेज को। जैसे आप अभी फ्यूल क्राइसिस का एग्जांपल ले लीजिए, मॉडर्न प्रॉब्लम जो चल रहा है, हम लोगों को जितना मन करता था हम लोग उस हिसाब से जैसे तैसे रिसोर्स को नेगेटिवली एक्सप्लॉइट करते थे। आज देखिए हम लोग किस जगह पे खड़े हो चुके हैं आके। ऐसा नौबत आ गया कि हमें बोला जा रहा है कि जितना हो सके आप वर्चुअल मीटिंग्स करिए, जितना हो सके आप कम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करिए, बिकॉज ये क्राइसिस कितना लंबा चलेगा हमें नहीं पता। ठीक है, सो कभी कभी प्रॉब्लम अबंडेंस की वजह से आ जाता है, स्कैर्सिटी की वजह से नहीं। ये है लाइनियन रॉबिन का डेफिनेशन। चलिए चौथा के ऊपर आते हैं, डेफिनेशन बाय पॉल सैमुएल्सन। His definition is growth oriented definition, and his definition is the most approved definition of all. इन्होंने क्या किया, सैमुएल्सन जी ने स्मिथ के क्रिटिसिज्म को पकड़ा, मार्शल के क्रिटिसिज्म को पकड़ा, रॉबिन के क्रिटिसिज्म को पकड़ा, देखा कि उनको किन किन ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया गया है, जिन एरियाज पे क्रिटिसाइज किया गया है उन सबको मैं जोड़ देता हूं, कोलैबोरेट कर देता हूं और अपना एक डेफिनेशन बना देता हूं, विच इज ग्रोथ ओरिएंटेड, विच इज मोर रियलिस्टिक। एंड इनका कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, इनका सिर्फ डेफिनेशन और फीचर्स करना है। हालांकि ये डेफिनेशन बहुत सिंपल टर्म में लिखा है, मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी लिख के दिखाता हूं क्या है। इनके हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमिक स्टडीज एलोकेशन, एलोकेशन अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। एलोकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एलोकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। ये कुछ एरियाज है जो इन्होंने हाईलाइट किया है। इनका एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, सो एक्चुअली व्हाट हिज डेफिनेशन इज, आई वुड राइट पॉल सैमुएल्सन के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ, सबसे पहले तो क्वेश्चन कि क्या, हाउ men and society, how men and society
चूज, जैसे इन्होंने चूज बोला मतलब इन्होंने हाईलाइट कर दिया कौन से प्रॉब्लम को, चॉइस को. इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ men इन सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी. नाउ ही वाज वेरी माइंडफुल कि एडम स्मिथ और मार्शल दोनों को क्रिटिसाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मनी सेंट्रिक अप्रोच, कि पैसा सब कुछ नहीं है. इसीलिए इन्होंने लिख दिया विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी. पैसा हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, बस इस्तेमाल होना चाहिए. किसका इस्तेमाल होना चाहिए? रिसोर्सेज का इस्तेमाल होना चाहिए. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यूजेज ऑफ रिसोर्सेज. सो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ men इन सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय. क्या करना है? एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का मतलब हो गया यूज. टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. देखिए क्या बोल रहे हैं, टू एम्प्लॉय मींस टू मेक यूज ऑफ स्केर्स. स्केर्स मतलब इन्होंने प्रॉब्लम हाईलाइट कर दिया विच इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारा रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है. सो इन्होंने स्केर्सिटी का डेफिनेशन को भी टच अपॉन कर लिया है. टू एम्प्लॉय स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज व्हिच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. अगेन स्केर्सिटी का डेफिनेशन टच अपॉन किया है कि रिसोर्सेज ना केवल स्केर्स है बट उनके मल्टीपल यूजेस भी है, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस. क्या करना है उन रिसोर्सेज से? प्रोडक्शन करना है. टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम. अब जैसे इन्होंने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होना है, जो प्रोडक्शन होना है वो ओवर टाइम होना है. मतलब उन्होंने जो बाउंड्री था बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके वो तोड़ दिया. लायनियल रॉबिन को जो क्रिटिसाइज किया गया कि आपका डेफिनेशन बहुत स्टैटिक है, मतलब प्रेजेंट प्रॉब्लम को हाईलाइट करता है, उन्होंने जैसे ही ओवर टाइम लिखा उन्होंने वो टाइम बाउंड्री क्रॉस कर दिया. वो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर में भी घुस गए. ठीक है, जिसकी वजह से उनका डेफिनेशन फ्यूचर ओरिएंटेड बन गया. His definition is future oriented. To produce various goods and services over time and distribute them now और in future. ना केवल प्रोडक्शन करना है बट डिस्ट्रीब्यूट भी करना है. क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है? ताकि डिस्ट्रीब्यूशन से कंजम्पशन हो सके, और जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा इकोनॉमी में. जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना पैसा बढ़ेगा इकोनॉमी में. तो उन्होंने वेल्थ अप्रोच को भी टच अपॉन कर लिया है स्मिथ का. सो टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम नाउ और इन फ्यूचर अमंग पीपल, यानी लोगों के बीच में, एंड वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी. कि ना केवल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है बट डिस्ट्रीब्यूट करना है नाउ और इन फ्यूचर. सो इनका डेफिनेशन फ्यूचर ओरिएंटेड बन गया, ग्रोथ ओरिएंटेड बन गया, क्योंकि इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है वो सिर्फ प्रेजेंट प्रॉब्लम के ऊपर बात नहीं किया है, फ्यूचर के ऊपर भी बात किया है. तो ये हो गया कंप्लीट डेफिनेशन. नाउ देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, बट आपको ये करना तो पड़ेगा. जैसे मैंने डेफिनेशन को पूरा तोड़ तोड़ के समझा है कि क्या है, वैसे ही अगर आप समझे हो कि ये क्या बोलना चाह रहा है, इट विल नॉट बी अ बिग डील फॉर यू टू लर्न. रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड एज इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है. इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ how men in society choose with or without the use of money to employ to make use of scarce productive resources. प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि ये रिसोर्सेज केपेबल है ऑफ बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी. सो स्केर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज व्हिच हैव मल्टीपल यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस, सो दैट goods and services can be produced. To produce goods and services over time and distribute them now or in future among people and various group of society. ठीक है, ये हो गया आपका इनका डेफिनेशन. चलिए इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं. चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो अब इनके फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहला, एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इन्होंने सारे एस्पेक्ट को टच कर लिया.
चाहे वो स्केसिटी का प्रॉब्लम हो, चॉइस का प्रॉब्लम हो, प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रेजेंट प्रॉब्लम हो, फ्यूचर प्रॉब्लम हो, सब कुछ कंसिडरेशन में लिया गया है. दैट इज हिज फीचर. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ओवर टाइम बोलते ही इन्होंने जो बाउंड्री था बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर उसको ब्रेक कर दिया. सो इनका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या कंसर्न है सब्जेक्ट को लेके, वो ना केवल प्रेजेंट प्रॉब्लम तक एसोसिएटेड है या सीमित है, लिमिटेड है, बट वो फ्यूचर में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. ठीक है, सो फोकस ऑन द फ्यूचर नीड. डायनामिक है इनका अप्रोच. डायनामिक क्योंकि इनका बात सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज या अनलिमिटेड वांट तक सीमित नहीं है, बट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नाउ एज वेल एज इन फ्यूचर, दोनों के बारे में बात हो रहा है. सो दैट मेक्स इट डायनामिक, मल्टी फैसेटेड और मल्टी डायमेंशनल इन नेचर. ये हो गया आपका तीसरा. इसके अलावा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब हो गया इन्होंने जिन जिन प्रॉब्लम को टच अपॉन किया है ये सारे इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो एग्रेरियन इकोनॉमी हो, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो, सर्विस इकोनॉमी हो, डेवलप्ड इकोनॉमी हो, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, ऑल काइंड्स ऑफ इकोनॉमी फेसेस दीज प्रॉब्लम्स जो इन्होंने हाईलाइट किया है. इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इन्होंने सारे एरियाज ऑफ प्रॉब्लम जो थे अलग अलग डेफिनेशन के, चाहे वो एडम स्मिथ का वेल्थ एरिया हो, चाहे वो मार्शल का वेलफेयर हो, चाहे वो स्केसिटी हो रॉबिन का, उन सारे मुद्दों को अपने डेफिनेशन में इम्बाइब किया है या इनकॉर्पोरेट किया है. एंड इसके अलावा ब्रॉडर स्कोप है क्योंकि ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ सब एरियाज को टच अपॉन करे अपने डेफिनेशन में. सो इनका स्कोप जो बन जाता है, एक्सटेंशन जो बन जाता है डेफिनेशन का, वो वाइड हो जाता है, वाइडर हो जाता है. ठीक है, वाइडर इन स्कोप. एंड आज तक का ये सबसे मोस्ट सैटिस्फैक्टरी डेफिनेशन है, सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाने वाला डेफिनेशन है. बट हाउएवर कुछ इकोनॉमिस्ट आज भी मानते हैं कि आप इकोनॉमिक्स को नट शेल में डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज एन एवर चेंजिंग साइंस. हर रोज बदलाव हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर में, हर रोज चेंजेस आ रहे हैं एंड हर रोज इकोनॉमिक्स का परिभाषा बदल रहा है. सो इट इज लाइक एन अनफिनिश्ड साइंस which cannot be defined in a nutshell. So economics still is an unfinished science as said by Zeuthn, and Jacob Weiner ने कहा था economics को अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो it is like economics is what economists do. यानी वो लोग, वो अर्थशास्त्री लोग जो लोग प्रैक्टिस करते हैं सब्जेक्ट को, वो लोग जो करते हैं वही इकोनॉमिक्स है. अब वो लोग चाहे जो भी कर रहे हो, ठीक है, देश के विकास के लिए. दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज. नाउ जब आप इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करते हैं, जाहिर सा बात है आप एक बार में सब कुछ नहीं समझ सकते हो, कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ नटशेल. दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को दो ब्रांच में तोड़ दिया गया है या दो हिस्सा में तोड़ दिया गया है. एक हिस्सा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक हिस्सा है मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट इज जस्ट लाइक योर केमिस्ट्री. द वे योर केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन द सेम मैनर your subject matter of economics is divided into micro and macro, where micro means from a smaller lens, मतलब from a miniature point of view आप चीजों को एनालाइज कर रहे हो. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हो या एनालाइज करते हो. सो दिस वर्ड माइक्रो, इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मिक्रोस. मिक्रो इज द ग्रीक वर्ड जहां से ये आया है एंड दैट मीन्स स्मॉल. तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटी का पढ़ाई करते हो, इंडिविजुअल यूनिट का पढ़ाई करते हो कि एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक इंडस्ट्री, एक मार्केट कैसे बिहेव करता है. बट इन्हीं इंडिविजुअल को अगर आप एग्रीगेट कर दो, एग्रीगेट मतलब सम अप कर दो, एक साथ जोड़ दो एंड बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे अगर इनका पढ़ाई करोगे तो फिर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी बन जाता है, which comes from the Greek word macros, and macro means large. So यहाँ macroeconomics is the study of the entire economy as a whole, entire country as a whole, पूरा देश को एक साथ लेके आप पढ़ते हो. माइक्रो को अगर मेन मुद्दा बताया जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में या इंडिविजुअल स्तर पे जो प्रॉब्लम होता है वो प्राइस से एसोसिएटेड होता है. कंज्यूमर को डिसीजन लेना है कि कौन सा गुड कंज्यूम करना है, वो क्या देखेगा, प्राइस. प्रोड्यूसर को गुड्स बनाना है, प्रोडक्शन करना है, प्रॉफिट. प्रॉफिट किसके साथ एसोसिएटेड है, प्राइस. जितना ज्यादा प्राइस उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन. मार्केट, मार्केट में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है एंड वहां पे नेगोशिएशन होता है ट्रेड करते वक्त. वो भी किस पे होता है नेगोशिएशन, प्राइस. बोल के माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी, क्योंकि आप यहाँ पे सब कुछ दाम के साथ एसोसिएटेड पढ़ाई करते हो. बट जब देश का मुद्दा का बात आता है, मैक्रो लेवल पे बात आता है, तो देश का मुद्दा इज रोजगार. रोजगार, एम्प्लॉयमेंट. एंड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेट अवे किसके साथ एसोसिएट हो जाता है, इनकम, पैसा. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली योर इनकम थ्योरी.
आप इनकम के बारे में पढ़ाई करते हो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो माइक्रो इज प्राइस थ्योरी, मैक्रो इज इनकम थ्योरी। जैसे मेन फोकस का अगर बात करें माइक्रो में, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कितना होना चाहिए, इकोनॉमिक वेलफेयर इंडिविजुअल का कैसे अचीव होना चाहिए, ये सारे कुछ मुद्दे हैं। मैक्रो पे अगर बात करें, ओवरऑल आउटपुट इनकम कितना होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी लोगों को पूरी रोजगार, या अगर बेरोजगारी है तो क्यों है, उसका मुद्दा है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्सेस अंडर यूटिलाइजेशन का बात होता है। महंगाई, मंदी, नेशनल इनकम मतलब जीडीपी वगैरह, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, रोजगार, कंजम्पशन, सेविंग, निवेश दैट इज इन्वेस्टमेंट, महंगाई, मंदी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारे कुछ मुद्दे हैं जो मैक्रो लेवल पे बात किए जाते हैं, ठीक है। और यहां पे आपका डिफरेंस दिया हुआ है, आपको कोई भी 6 डिफरेंसेस इन टोटल कवर अप कर लेना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसका ये जो पीपीटी मैंने यूज किया है इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूं अपने एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, आप वहां पे जाइएगा। आर्यन ट्यूटोरियल इज द नेम ऑफ माय एप्लीकेशन। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, ठीक है, इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर, अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल फोन चलाते हो, देन यू नीड टू डाउनलोड आर्यन ट्यूटोरियल्स ऐप, एंड वहां से आपको ये फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मोबाइल फोन का आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा, प्रोफाइल पिक्चर पे जो भी होगा आपका प्रोफाइल, उस पर टैप करिएगा, आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिखेगा, फ्री मटेरियल दिखेगा। उस पे मैं यूट्यूब पीपीटी क्लास 11 करके एक नाम फोल्डर बना के डाल दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप iOS यूजर हो, ठीक है, इफ यू आर एन एप्पल यूजर, iOS चलाते हो, एप्पल का मोबाइल फोन चलाते हो, देन यू नीड टू डाउनलोड क्लास प्लस ऐप, ठीक है। क्लास प्लस ऐप को आप डाउनलोड करिए, आपको मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना पड़ेगा जो मांगेगा, विच इज PLYMMB। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, इसको पंचन करिएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, ओटीपी जनरेट होगा, एंड वहां से भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में ये मिल जाएगा, एंड आप इससे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। I hope that is clear. And for this video, I will come to the end. That's all. Thank you so much. I hope you all would have liked my comprehensive explanation. I'll very soon see you in my second video dealing with the second chapter. Till then, if you are liking my content, don't forget to like, share, subscribe. Keep smiling, keep studying. I'll see you in my next video. Take care. Bye-bye.